نیب نے شہباز شریف کو اثاثہ جات کیس میں پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا۔ نیب لاہور نے 22 اپریل کا نوٹس جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق اثاثہ جات انکوائری حتمی مراحل میں اور شہباز شریف سے انکوائری ضروری ہے۔ پیشی پر سماجی فاصلوں سے متعلق ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ عدم تعاون کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ برطانیہ میں ظالم کرونا وائرس آج پھر 449 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ 4676 نئے کیسز کے بعد متاثرین کی کل تعداد 1,24,743 ہو گئی۔ وزیر ثقافت آلیور ڈاؤڈن نے کورونا وائرس 3 ماہ تک جاری رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی و کشمیری نژاد کاؤنسلرز کورونا متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ پاکستانی کشمیری کاؤنسلرز فورم کی اپیل پر بکنگم شائر بارکنگ ہاؤنسلو کے پاکستانی کاؤنسلرز کی جانب سے عطیات کا اعلان۔ برمنگھم میں مسلمان شہریوں کی پے در پے اموات سے کمیونٹی پر سوگ طاری۔ زیادہ اموات کی وجہ سے تدفین کا عمل سست روی کا شکار۔ برمنگھم کمیونٹی فورم کا مقامی انتظامیہ سے تدفین کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ۔ UK اسلامک مشن کے تحت مدینہ مسجد راسٹڈیل میں ضرورت مندوں کی امداد کا سلسلہ جاری۔ مخیر حضرات زیادہ سے زیادہ عطیات دے کر فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اسلامک مشن کے ذمہ داروں کی اپیل۔ آزاد کشمیر حکومت کا اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ۔ پاکستان داخل ہونے کے لیے لوکل پرمٹ کی شرط ختم۔ اپنا ٹکٹ اور سفری دستاویزات دکھا کر پاکستان جا سکیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ جنوبی افریقہ سے خصوصی طیارہ 81 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ۔ ہمیں بھی وطن واپس پہنچایا جائے، سعودی عرب اور امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وزیر اعظم سے اپیل۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ موذی مرض سے 103 افراد جاں بحق۔ جدہ کی مارکیٹس میں تھرل کیمرے نصب۔ بخار میں مبتلا افراد کی فوری تشخیص ہو سکے گی۔ ترکی میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے طبی عملے کا انوکھا احتجاج۔ فٹ بال فینس نے بینڈ کی دھن اور تالیوں کی گونج میں ایمبولینس عملے کو شکریہ ادا کیا۔ پھول نچھاور کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں رافع عوان۔ ناظرین، بیمار ہونے سے بہتر ہے احتیاط اپنانا۔ اب نہیں چلے گا سپریم کورٹ میں کوئی بھی بہانہ۔ کیا اب بھی کوئی بن رہا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ؟ میرا جی کیوں چاہتی ہیں فوری پاکستان آنا؟ ان سب سوالات کے جواب شامل ہیں پرائم ٹائم بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا، جنہیں اثاثہ جات کیس میں پیشی کے لیے قومی احتساب بیورو نے آج آخری موقع دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف سے کیمرے کے سامنے تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت سے کورونا تو کنٹرول ہو نہیں رہا، ساری توانائیاں اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر لگا رکھی ہیں۔ جواب میں فیاض الحسن چوہان بولے کہ شہباز شریف اب کورونا کا بہانہ بنا کر پتلی گلی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کو نیب کے سامنے پیشی کے لیے آخری مہلت۔ نیب کے مطابق انکوائری حتمی مراحل میں ہے۔ شہباز شریف سے انکوائری کرنا ضروری ہے۔ اپوزیشن لیڈر 22 اپریل کو پیش ہوں گے۔ نیب کا کہنا ہے شہباز شریف کی پیشی پر کورونا کے پیش نظر سماجی فاصلوں سے متعلق جاری ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ادارے کے ساتھ عدم تعاون کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف سے کیمرے کے سامنے تفتیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، حکومت سے
से कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा और वो अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। आज जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है ये नालायकी है, ये बदनीयती है, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी है, ये वो घटिया सोच है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में गिरफ्तार किया गया, आशियाना केस में फंसाने की कोशिश की गई, जबकि अब फिर नोटिस भेज दिया। जो सवाल शहबाज शरीफ से करे वही इमरान खान से भी होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया नैब ने साफ पानी के केस में, आशियाना का केस बनाने की कोशिश की, फिर एक गंदे नाले की कंस्ट्रक्शन का केस बनाने की कोशिश की, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस उन पर बनाने की कोशिश की। मैं ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान से भी मांग लें उसके क्या एसेट्स है, उसके क्या इनकम है, उसके क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, FBI का रिकॉर्ड क्या कहता है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ बहाना बनाकर पतली गली से भाग रहे हैं, लेकिन करप्शन का हर हाल में हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ साहब, आप लंदन से जब यहाँ आए थे तो आपने एक वीडियो मैसेज के जरिए से बड़ी भड़कें मारी थी कि मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की आवाम के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ूंगा। आपका जो हिसाब किताब रियासती अदारे कर रहे हैं तो आप कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। जनाबे वाला, ये कोई तरीका नहीं है। नैब लाहौर ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ को तलब किया था, ताहम उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे पर पेश होने से माजरत कर ली थी, जिस पर उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया गया है। शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला तो 22 अप्रैल को होगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आटा चीनी स्कैंडल की फाइलें भी खंगालना शुरू कर दी हैं। नैब हुक्काम का कहना है अरबों रुपए की डकैती पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब ने आटा चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी DG नैब रावलपिंडी को तफवीज कर दी। आटे और चीनी स्कैंडल के किरदारों के लिए नैब का शिकंजा तैयार। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। नैब ज़राए का कहना है कि अरबों रुपए की डकैती पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। नैब ज़राए के मुताबिक आटे चीनी स्कैंडल के कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। कानूनी जायजे के बाद भरपूर, जामे, आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने आटा चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी DG नैब रावलपिंडी को तफवीज कर दी। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आटा चीनी स्कैंडल पर तनकीद करते हुए कहा कि नैब को आटा चीनी स्कैंडल नजर नहीं आता। ऐसे हुक्मरानों और नैब जैसे इदारों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म ने आटा चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट में कई सियासी खानदानों और किरदारों के नाम सामने आए थे। रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट जारी है, जो रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। करप्शन के खिलाफ नैब नबुर्द आज़मा है तो सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर नज़र रखे हुए है। अदालत उज़्मा ने वबा से निपटने के लिए किए गए इक़दामात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खरबों रुपए खर्च हो गए जबकि मरीज सिर्फ 5000 हैं, किसी को इल्म नहीं हुआ और सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, कपड़े की दुकान खोले बगैर दर्जी की दुकान खोलने का क्या फ़ायदा। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी सेहत ने बताया इस्लामाबाद में 16 करंटीना सेंटर्स हैं। हुकूमत करंटीना में रहने वालों का खर्चा बर्दाश्त करती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि हाजी कैंप करंटीना मराकज में हालात गैर इंसानी है। मर्दान में सऊदी अरब से आए शख्स ने कोरोना फैलाया, गोली खाकर निकला और पूरी यूसी बंद करा दी। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को खुद हाजी कैंप और OGDCL में कायम करंटीना सेंटर्स का दौरा करने की हिदायत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोस्टम से हटाकर सीट पर जाकर बैठने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, हुकूमत पैसे बहुत खर्च कर रही है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। वर्ल्ड बैंक के पैसे से यूनिसेफ से खरीदारी का क्या मुअम्मा है? ये तो पैसा एक हाथ से लेकर दूसरे से देने की बात है। अदालत ने कहा किसी सूबे ने शफाफियत पर रिपोर्ट नहीं दी। सिंध ने 1 अरब से जायद का राशन तकसीम किया और किसी को पता भी नहीं चला। वैसे छोटी चीज किसी को देते हैं तो अखबार में
2 तस्वीर आती हैं। मीडिया पर सुना एक्ट चीनी दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए फैक्ट्रीज एक्ट पर सिंध की कोई फैक्ट्री पूरा नहीं उतरती। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी तो लोगों को भागने का रास्ता भी न मिला। फैक्ट्री मालिकान अपने अमले को इंसान नहीं समझते। जो भी सनतें खोली जाएं उन पर मायार यकीनी बनाया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कपड़े की दुकान बंद करके दर्जी की दुकान खोलने का क्या फायदा। अदालत ने डॉक्टर्स, मेडिकल अमला और सैनिटरी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया और समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यूके पाकिस्तानी कश्मीरी कौंसलर्स फोरम साउथ इंग्लैंड के जनरल सेक्रेटरी कौंसलर कैसर अब्बास गोंदल की अपील पर कौंसलर हिना मीर, काशिफ हारून और माजिद हुसैन ने भी अपने अलाउंसेस का 25% कोरोना वायरस समेत दीगर रफाही कामों पर खर्च करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। कोरोना की वबा से लड़ने के लिए जहां हुकूमतें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी इस मुश्किल घड़ी में इक़दाम करते नजर आ रहे हैं। बरतानिया में कौंसलर्स की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल कैसर अब्बास गोंदल का कहना था कि उन्हें खुशी है कि दीगर कौंसलर्स ने भी उनकी दरख्वास्त पर अपने अलाउंस का कुछ हिस्सा रफाई कामों पर खर्च करने का फैसला किया है। उनका मजीद कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि दीगर लोग भी आगे आएंगे और इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद करेंगे। बहुत मशकूर हूँ अपने काउंसलर्स दोस्तों का जिन्होंने मेरी दरखास्त के ऊपर अपने अलाउंस का 25% जो है वो डोनेट करने का ऐलान किया, और ये 25% जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी काउंसिल्स के अंदर मुस्तहिक लोगों में जो रिफाई इदारे हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे। और मैं समझता हूं कि जब भी इस मुल्क में या कहीं भी कोई मुश्किल हालात आते हैं या मुसीबत आती है, तो जो पाकिस्तानी और कश्मीरी काउंसलर्स हैं वो हमेशा इसमें दिल खोल के उन लोगों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। बकिंघम शायर काउंसिल से काउंसलर माजिद हुसैन, नायब सदर फोरम बार किंग काउंसिल से काउंसलर काशिफ हारून और हंसलो काउंसिल से काउंसलर हिना मीर ने भी अपने अलाउंस का 25% देने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर फोरम के सदर मेयर चेशम टाउन काउंसलर कैसर चौधरी और साबिक मेयर काउंसलर अंसर हुसैन, सीनियर नायब सदर फोरम ने भी इन ऐलानात को सराहा है और कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रकम जरूरतमंदों पर खर्च करनी चाहिए। बर्मिंघम में मुस्लिम कम्युनिटी की ज्यादा तादाद में अमवात की वजह से तदफीन का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिसके पेश नज़र बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम ने ऑनलाइन इजलास के दौरान अरबाब इख्तियार से फौरी इन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन शौकत अली खान, जनरल सेक्रेटरी फैसल महमूद ने बर्मिंघम में कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में अमवात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इन अवामिल को जानना और उनका तदारुक करना बेहद ज़रूरी है ताकि बढ़ती हुई अमवात को कम और ख़त्म किया जा सके। उनका कहना था मैयतों की वर्सा को हवालगी और तदफीन समेत दीगर मसाइल का हल अशद ज़रूरी है। बर्मिंघम के अवाम के लिए तीनों कब्रिस्तानों हैंड्सवर्थ, केसलवेल और संबल मिल में मैयतों को दफनाने की इजाज़त दी जाए। इस मौके पर फैसल मिर्जा और साबिक काउंसलर राजा शौकत ने 92 न्यूज़ के जरिए अपने मुतालबात पेश करते हुए कहा बर्मिंघम सिटी काउंसिल को इस मुश्किल घड़ी में कब्रिस्तान की टाइमिंग्स में भी इजाफा करना चाहिए। डेथ हुई है, उनको रजिस्ट्रेशन के अंदर काफी तातुल आ रहा है, उसके अंदर यानी कि गैप आ रहा है, तो उसको हमने खत्म करना है ताकि जल्द से जल्द बॉडी को रिलीज भी किया जाए और जल्द से जल्द दफनाया भी जाए। तो एक बैकग्राउंड तो एक तो रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, दूसरा उसको दफनाने का मसला आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि बर्मिंघम के जो 3 कब्रिस्तान है, यहाँ के लोकल हैंड्सवर्थ सेमेंट्री है, इसी तरह से कैसलवेल की है और टिम्बल मिल की है, उन तीनों को हमें एक्सेस दी जाए कि अपने यहाँ पे जो अमवात हुई है उनको जल्द से जल्द उनके चाहने वालों को दफना सके। एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे डेथ्स भी ज्यादा हो रही हैं। तो हमारे जो नौजवान है खासकर वो पूरा दिन बाहर और अंदर घूम रहे हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए यह परेशानी पैदा कर रहे हैं, और इनकी वजह से एक वजह डेथ की ये भी है। तो ये जो सोशल डिस्टेंस है इनको हमें रखने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मसाइल हैं इनके हल करने के लिए कम्युनिटी मिलकर जदोजहद करेगी। बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम ने लॉर्ड मेयर्स, लेबर काउंसलर्स, कंजर्वेटिव काउंसलर्स और दीगर अहम शख्सियात से कहा मुश्किल की इस घड़ी में किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक इंसानी जान अहम और अनमोल है। अपनी और दूसरों की जानों को बचाने के लिए हर मुमकिन तदाबीर और इक़दामात इख्तियार किए जाएँ। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यूके इस्लामिक मिशन अपने शोबा आई केयर के तहत मदीना मस्जिद रॉचडेल में पिछले 4 साल से सैकड़ों ज़रूरतमंद अफराद की माहाना इमदाद का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस्लामिक मिशन की फलाही सरगर्मियों पर नजर डालते हैं एतजाज आसम चौधरी की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस की वबा के दौरान लॉकडाउन की वजह से जहां पे लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, इन्हीं मुश्किल हालात में यूके इस्लामिक मिशन की 54 ब्रांचेस बरतानिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में जरूरतमंदों को खाने पीने की अशिया फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इमाम व खतीब मदीना मस्जिद रोशडेल मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना अब्दुल रशीद, यूथ इंचार्ज यूके इस्लामिक मिशन नबील तारिक और इनकी टीम NHS और दीगर अदारों को भी खाने पीने की अशिया फराहम करने में पेश है। मौलाना अब्दुल हकीम और मौलाना अब्दुल रशीद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जरूरतमंद बेघर अफराद और बेरोजगार अफराद की मदद करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा रहा है। यूके इस्लामिक मिशन के प्लेटफॉर्म से हम मुआशरे की जरूरतमंद अफराद की हर लिहाज से मदद कर रहे हैं। 2016 में हमारे नौजवानों ने एक जज्बे के तहत ये काम शुरू किया था, फूड बैंक यहाँ इस मदीना मस्जिद की बेस पर। पहले ये छोटे पैमाने पर थे कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इसके अंदर वसअत पैदा हुई और पूरे राजडेल के अंदर जो है हर घर के अंदर ये बात सबको मालूम है कि मदीना मस्जिद के अंदर नौजवान जो हैं ये फूड बैंक का काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी जज्ब के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मामूल के मुताबिक इससे पहले जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह 35 फैमिली जो है उसमें से 108 मेंबर जो है 108 मेंबर जो है वो फ़ायदा उठा रहे थे। और हमने ये जब ये क्राइसिस शुरू हुआ है तो उस वक्त कवर एमरजेंसी रिस्पांस के तहत हमने 200 ये अफराद तक ये पहुँचे हैं। यूके इस्लामिक मिशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी खालिद ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि यूके इस्लामिक मिशन एक बेहतरीन फलाही अदारा है जो हर मुश्किल में मुकामी और इंटरनेशनल सतह पर जरूरतमंद इंसानों की मदद करता है। इस्लामिक मिशन हज़ारों लोगों को अक्रॉस द कंट्री और अब्रोड भी ज़रूरतमंदों को और बेघर अफराद को ये खाना मुहैया करते रहते हैं। और आप ये देखें कि यहाँ हमारे फूड बैंक जो प्रोजेक्ट है आई केयर के हवाले से यूके इस्लामिक मिशन का, वो तमाम ब्रांचेज जो हैं वीकेंड पे ये काम जारी और सारी रखे हुए हैं। जो ज़रूरतमंद अफराद हैं हमारे इस माशरे के, ख्वाह वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, जो भी है वो जिस कौम से जिस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह को जिस नस्ल से तल्लुक़ रखने वाले हैं, उन तक वो पहुँच रहे हैं और उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें वो उनको घरों तक पहुंचा रहे हैं। और जहाँ भी जो है काफ़ी लोग आ रहे हैं इस सिलसिले में अपना वो खुराक लेने के लिए, फूड लेने के लिए। तो मैं अपने उन नौजवानों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सलाहियतों को में इजाफ़ा फरमाए। We've been running this now for 4 years, since 2016. We're supporting 35 families every month, 1,600 a year, and it's over 108 people every month. We'd like to thank the people that are donating every month. We'd like to thank everyone for the support. यूके इस्लामिक मिशन ने मुखय्यर हजरात से भी कार खैर में हिस्सा डालने की अपील की। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से तारकीन वतन को काफ़ी मसाइल का सामना था, जिसकी बिना पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब तारकीन वतन को लोकल गवर्नमेंट की जानिब से परमिट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो अपना टिकट और सफरी दस्तावेज़ात दिखाकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो सकते हैं। इसी पर मज़ीद बता रहे हैं वकार बाबर मुगल। वकार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दहान गली के मुकाम पे, जहाँ पे पिछले महीने की 23 तारीख को लॉकडाउन का जब ऑर्डर किया गया था तो उस वक्त से अब तक तमाम तर जो ट्रैफिक जो है नकलो अमल जो है वो मुअत्तल की गई थी। और गुज़श्ता रोज़ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है इस सेंस में कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं बैरून मुल्क तो उसमें उनको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग एयरपोर्ट पर जाएंगे और ड्राइवर के हवाले से जो ख़ास तौर पर इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की जानिब से वो क्या है, हमारे साथ जो है इंस्पेक्टर जमाल जो इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी पे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या शराइत हैं जिनकी बिना पर लोग जो बैरून मुल्क जाएंगे उनको जाने की इजाज़त मिलेगी। ये 1-2 रोज़ पहले जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उन्होंने नई पॉलिसी का ऐलान किया था कि जो लोग फॉरनर्स जो इधर आज़ाद कश्मीर में फ़्लाइट ऑपरेशन कैंसिल होने की वजह से फंस गए हैं, वो जो ये मखसूस फ़्लाइट्स जो हैं जो लोगों को तारकीन वतन को जो है ना वापस लाने के लिए और ले जाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है, इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए उन्होंने तारकीन वतन के लिए एक ख़ुसूसी पॉलिसी का ऐलान किया है कि वो लोग जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं वो अपने साथ अब उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो परमिट की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उनके पास जो है वो अपना वैलिड पासपोर्ट, वैलिड उनके पास टिकट और उनका आईडी कार्ड वगैरह और ये दस्तावेज़ात जो है उनकी शनाख्त के हवाले से ये उनके पास मौजूद होनी चाहिए। और जो उनको अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो परमिट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो अपने साथ कोई और बंदा जो है वो उसका कैरी नहीं उसको नहीं कर सकेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो बंदा जा रहा होगा, जो फॉरनर जो बाहर जा रहा है, वो अपने साथ जो अपना एक ड्राइवर रख सकता है
जो उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस आएगा, जो डडियाल के या आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सफ़र करना है, तो उनके लिए लॉकडाउन की जो पाबंदियाँ हैं वो उसी तरह बदस्तूर अभी कायम हैं जिस तरह के वो लॉकडाउन के इब्तिदा से हैं। बसूरत दीगर और कोई भी बंदा जो परमिट के बगैर आएगा उसको यहाँ से ना तो एंट्री की इजाज़त है और ना ही वो यहाँ से एग्ज़िट कर सकेगा। अभी भी कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो दोनों अतराफ़ पे जा रही हैं, तो क्या इनके पास कोई परमिट वगैरह है या किस बेस पे वो जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं आपको इसके हवाले से जो है वजाहत कर दूं कि यहाँ पर हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं और ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं इनके बाकायदा जो आप ये देख सकते हैं वहाँ पर कि ये हमारे वहाँ पर इनकी एंट्री हो रही है और ये वही लोग यहाँ से गुजर रहे हैं जिनके पास या तो एडमिनिस्ट्रेशन का पास है, अदरवाइज़ कोई भी बंदा यहाँ से जिसके पास जो है वो परमिट नहीं है या वो किसी एसेंशियल सर्विस से जिसका ताल्लुक नहीं है, वो बंदा यहाँ से किसी सूरत भी एग्जिट नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर जमाल जो यहाँ पे इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनका कहना यह है कि अवामुन्नास को ख़ास तौर पे जो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं और ख़ास तौर पे बरतानिया के में जो लोग जा रहे हैं, जो खुसूसी त्यारे जो है उनके लिए भेजे जा रहे हैं, तो उनको अब किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको टिकट दिखाना होगा, अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और एक ड्राइवर जो है वो उनके साथ जा सकता है। वापसी पर वो ड्राइवर जो है वो यहाँ पर आके तो दोबारा उसको जाने की जो है वो इजाज़त मिल जाएगी। यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमेरिका में महसूर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील की है कि दीगर ममालिक की तरह अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाया जाए। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वाशिंगटन में मौजूद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, गुज़िश्ता एक माह से मैं यहाँ अमेरिका में मौजूद हूँ और पाकिस्तान की जानिब से फ़्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड किए जाने की वजह से मुझ समेत सैकड़ों पाकिस्तानी यहाँ महसूर होकर रह गए हैं और पाकिस्तानी एम्बेसी की जानिब से हमसे किसी किस्म का रब्ता नहीं किया गया। हमारे रब्ता करने पर भी हमें कोई ख़ास अपडेट्स नहीं मिली। वहाँ से मुसलसल हमें ये कहा जाता है कि जी हम कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे ही कोई स्पेशल फ़्लाइट का अरेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन एक माह से ज़्यादा होने के बावजूद मुझ समेत सैकड़ों पाकिस्तानी जिनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और वो यहाँ गैर यकीनी हालात का शिकार हैं, इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब पाकिस्तानी हुकाम की तवज्जो अमेरिका में महसूर पाकिस्तानियों की तरफ जाएगी और उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग ने रूस की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत डॉक्टर तारिक चौधरी की जानिब से भेजी गई इमदादी रकम ज़रूरतमंद पाकिस्तानियों में तकसीम की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर तारिक चौधरी का शुक्रिया अदा किया। मॉस्को से शाहिद घुमन। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग ने मॉस्को से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन डॉक्टर तारिक चौधरी की जानिब से भिजवाई गई अतिया की रकम लॉकडाउन के बाइस घरों में बैठे हुए 50 ज़रूरतमंद पाकिस्तानियों में तकसीम की। इस मौका पर पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फारूक खान होती ने खिताब करते हुए डॉक्टर तारिक चौधरी का इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कम्युनिटी की माली मुआवनत करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में तारिक चौधरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। मैं जनाब डॉक्टर तारिक चौधरी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है इस मुश्किल वक़्त में अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए इमदाद के तौर पर पैसे भेजे। वो पैसे आज हमने यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में मुस्तहिकीन के दरमियान तकसीम किए हैं। फारूक खान होती का मजीद कहना था कि रूस में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं और रूसी हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात पर अमल पैरा हैं। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। तुर्की में पाकिस्तान के नायब सफ़ीर सैयद अली असद कहते हैं पाकिस्तानी हुकाम से यहाँ मौजूद अफराद की वापसी के लिए दरख्वास्त कर दी है। सिफारत खाना और तमाम काउंसलेट हमवतनों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। तुर्की में पाकिस्तान के नायब सफ़ीर सैयद अली असद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम ऑडियो पैगाम जारी किया जिसमें उनका कहना है कि वो यहाँ मौजूद हमवतनों की वापसी के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। इस मामले में जो भी पेशरफ्त हुई सिफारत खाना अपनी वेबसाइट के जरिए सबको आगाह कर देगा। 22 अप्रैल को तुर्किश एयरलाइन का तैयारा साजो सामान लेकर पाकिस्तान जा रहा है। सैयद अली असद का मजीद कहना था कि जिन लोगों के वीज़े की तारीख ख़त्म हो रही है उन्हें तुर्किश हुकूमत की जानिब से जुर्माना नहीं किया जाएगा। नायब सफ़ीर ने माली मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों की मदद के लिए मुखय्यर हजरात से अपील भी की। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। जनूबी अफ्रीका से भी खुसूसी तैयारा 81 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
जनूबी अफ्रीका से भी खसूसी परवाज 81 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गई। परवाज में जनूबी अफ्रीका और 6 हमसाया ममालिक के दौरे पर आए मुसाफिर भी शामिल हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुसाफिरों ने बेहतरीन इंतजामात करवाने पर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान और दीगर अमले का शुक्रिया अदा किया। सफारत खाने में हमारी बहुत अच्छी मदद की, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और शुरू फितने को तौफीक फरमाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली जो हाई कमीशन इन प्रिटोरिया कि उन्होंने हमारे लिए स्पेशल फ़्लाइट कराई, PIA से नहीं बल्कि जो भी उनका चार्टर प्लेन था वो हमारे लिए सबके लिए अरेंज करा हमारी रिक्वेस्ट पे। डिप्टी हाई कमिश्नर अदनान चौधरी साहब इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ही रिस्पॉन्ड ऑन द फर्स्ट कॉल, ऑन द फर्स्ट ईमेल। He was very helpful over all 26 days over here. They provided us food and anything that we want. पहले पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया और 26 को यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। उसके बाद फिर अपने हाई कमीशन से रब्ता किया, तो उन्होंने हमारे रेजिडेंट्स का बंदोबस्त किया। उसके बाद दे हैव बीन हेल्पिंग अस ऑन द वे, यहाँ तक हम पहुँचे और फाइनली दे मैनेज टू मेक दिस स्पेशल फ्लाइट विच इज़ अ प्राइवेट वन, और ये आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने एफर्ट की है हमारे लिए और फाइनली हम इसमें आज बोर्डिंग करने लगे। खसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां मुसाफिरों को करंतना में रखकर उनके टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त मिलेगी। पाकिस्तान रवाना होने से कबल मुसाफिरों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। मैसीसागा से ताल्लुक़ रखने वाले कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट खालिद रशीद ने कोरोना से मुतासर होने वाले शहरियों के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी खुसूसी पैगाम में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की कि वो दुआओं के साथ साथ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले और दीगर स्टाफ को भी याद रखें। उन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की आमद की मुबारकबाद भी पेश की। आइए देखते हैं। My heart goes out to everyone affected by this COVID-19 crisis. Within all of this turmoil, I pray that together we find hope and strength. I truly believe that by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we will come out of this crisis stronger than ever before. This year's Ramadan will be very different. While we remain isolated and practice social distancing, we must remember that God is with us and we are never alone. Please continue to remember in your prayers our frontline healthcare and emergency workers who continue to serve us during this challenging time. God willingly, we will prevail through the challenges that are in front of us, and soon we will be with our loved ones. I wish you and your family Ramadan Mubarak. बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।